Okay. Now what about rotational motion? Let's say any object of any shape. Let's say any object of any shape. And let's say this is axis here. This is, you can say, axis. This is axis of rotation. Axis passing from here. Okay. Now, let's say there are various particles are there. This extended body, you can say. Extended body means it's a large body. Okay. It is not a point mass. So extended body में there various particles are there. Let's say अगर मैं इसको ले रहा हूँ, let's say particle is M1 and its radius is, let's say, R1. तो ये भी particle rotate करेगा like this way. See here, this particle rotating like this way. तो what will happen? ये जो M1 particle है ना, it will perform circular motion. Let's say I'm taking another particle. Let's say it is M2 here. So here radius will be, let's say, R2. This part of body is revolving around this common axis. So what will happen again? This particle is performing circular motion. So actually, what is the difference between circular motion and rotational motion? Difference क्या है दोनों में? Circular motion में first of all there is a single particle performing circular motion. लेकिन rotational motion में क्या होता है कि there are set of connected particles, बहुत सारे particles हैं, and all are individually performing their own circular motion. And their radius are different. उनके radius सबके अलग अलग हैं. Are you getting? Radius, suppose अगर एक और particle लेते हैं, let's say mn, तो उसका radius अलग बनेगा. तो basically इसमें circular motion में क्या होता है कि particle, you can say a point mass या single particle performing circular motion, you can say a single particle performing circular motion. Here in rotational motion, a set of connected particles performing circular motion such that these particles having different radii, these particles having different radius. Here radius is same, ठीक है. इधर क्या है, radius same है, लेकिन यहां पर क्या है कि the set of connected particles they are performing, you can say, just a minute बच्चा, एक second. अच्छा, so having different radius about a common axis. Axis is common, ठीक है. They have different plane of radius, but they are revolving around a common axis. सबके जो radius है ना, different radius having with common axis of rotation. उनका जो axis होता है सबका common होता है. All are rotating about a common axis. Is it clear? So you can say कि rotational motion में one particle नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे particles होते हैं, and all are performing, you can say, circular motion about a common axis. ठीक है. तो circular motion rotational motion में ये फर्क है कि circular motion में एक single particle होता है, rotational motion में एक single particle नहीं होगा, एक से ज्यादा particle होंगे. There is more than one particle. ठीक है. There are more than one particle and बहुत सारे masses हो सकते हैं, M1, M2, M3, M4, all are performing their circular motion about a common axis. ठीक है. तो basically rotational motion में we will consider the rotational motion of a rigid body, you can say. Here we will consider, here
we will consider rotational motion of a rigid body. You can say rotation of a rigid body. Of a rigid body. So हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको आइडिया लग रहा है? तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. आपको याद है सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था ओमेगा क्या होता था, अल्फा क्या होता था, दैट वन. ठीक है, तो वो सब यहां पर वापस आ जाएंगे. तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन इज अ एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तभी आपको रोटेशनल मोशन आगे पढ़ पाएंगे. और सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ करता था, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था, ये सब पढ़ा था दैट वन. तो फिलहाल ठीक है. सो एवरीबॉडी गॉट द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? सर ये न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है ये? बेटा ये न्यू सब टॉपिक है. एक्चुअली रोटेशनल मोशन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था तो हमने टॉर्क पढ़ लिया था ना, तो टॉर्क रोटेशनल मोशन का ही पार्ट है, तो उसका सब टॉपिक है. तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. सर एक बार फिर से बताओ ना, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था. एक मिनट. हाँ, मैं क्या बता रहा था कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक सिंगल पार्टिकल जो होता है, एक ही सिंगल पार्टिकल, ओनली सिंगल पार्टिकल, और उसका रेडियस भी कांस्टेंट होगा. हाँ, जो भी होगा कांस्टेंट होगा. और वो एक सिंगल पार्टिकल एक कॉमन एक्सिस के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, यू कैन से प्रॉपर वर्ड रिवॉल्व करता है. लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक पार्टिकल नहीं होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और सभी पार्टिकल का रेडियस क्या होता है, डिफरेंट होता है, और सब इंडिविजुअली सर्कुलर मोशन करते हैं अलग अलग रेडियस लेकर, लेकिन करते सब सर्कल है. तो अगर मैं कोई बॉडी ऐसी लेता हूं, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इसमें मैंने M1 लिया है, M2 लिया है, टू पार्टिकल्स एंड ऑल आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टिकल होता है और वो सर्कुलर मोशन होते करता है. रोटेशनल मोशन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो सर्कुलर मोशन. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू. कॉपी ऑन दिस वन. सर बहुत पार्टिकल होते हैं. हाँ, उसमें एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे ना. जैसे आपको सीलिंग फैन होता है, जैसे घर में जो सीलिंग फैन होता है ना, जो सीलिंग रूफ पे लगा रहता है फैन, सीलिंग फैन, तो क्या इसमें एक पार्टिकल होता है क्या? नहीं, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर हम लोग उसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे. यू कॉल्ड इट रोटेशनल मोशन. समझा? मतलब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पॉइंट मास होता है. बेसिकली यू कैन से इट्स अ पॉइंट मास. इट्स अ, यू कैन से इट इज अ पॉइंट मास. रोटेशनल मोशन कोई पॉइंट मास नहीं होता, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. सीलिंग फैन जैसे, वो सीलिंग फैन के ब्लेड्स हैं, 3 ब्लेड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सर्कुलर मोशन वो रिवॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोल देंगे. सिंगल पार्टिकल सर्कुलर मोशन, बहुत सारे पार्टिकल या बहुत बड़ी बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशनल मोशन. सर यस. सर मतलब हम लोग अर्थ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, मतलब वो खुद रोटेट करता है और
सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन करता है वैसे। नहीं 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 मतलब जैसे जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने सीलिंग फैन लिया। सीलिंग फैन में क्या एक ही पार्टिकल होता है क्या? सीलिंग फैन का ब्लेड जो सपोज सीलिंग फैन कहते हैं, दिस इज अ सीलिंग फैन। हाँ, ये सीलिंग फैन है, उसके ये ब्लेड्स हैं और ये सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, M1 M2 M3। जब ये रिवॉल्व करेगा तो व्हाट विल हैपन? ऑल द पार्टिकल्स दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कि नहीं? तो मतलब एक्सटेंडेड बॉडी होती है, कोई बड़ी बॉडी होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रोटेशनल मोशन। पेन नहीं रहा। ओह जस्ट वेट वेट, एक सेकंड चंदाना रुक जाओ। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी होती है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं, मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल हो गए। सिंगल पार्टिकल है तो सर्कुलर मोशन, बहुत सारे बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी हो गई, एक रिजिड बॉडी हो गई, जैसे रॉड हो गया, वो डिस्क हो गया, वो रिंग हो गया, वो कोई कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये तो बड़ी बॉडीज हो गई ना, फिर उनको हम रोटेशनल मोशन में डाल दें। ठीक है? यस सर। ओके नो, सॉरी सर, गलती से अनम्यूट हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे इनर्शिया वर्ड तो आप बोलेंगे मैंने पहले भी सुना हुआ इनर्शिया वर्ड। इनर्शिया हमने फोर्स के चैप्टर में पढ़ा था, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन, अपने जो स्टेट को मेंटेन रखता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट्स अ रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन rest, to maintain state of rest or state of rotational motion. Rotational motion. Tendency of a body to maintain state of rest or state of rotational motion. आपने कभी देखा है ना, घर पे अक्सर आप देखते रहते हैं, जो सीलिंग फैन आपके घर में है, आप उसको स्विच ऑन करते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड, स्विच ऑन करते हो, तो आप देखते हैं कि फैन को करंट तो पूरा मिलता है बट वो बहुत स्लो स्टार्ट होता है, धीरे 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 स्टार्ट होता है। व्हाई? करंट तो पूरा मिल रहा है ना, तो उसको बहुत फुल स्पीड में आ जाना चाहिए ना इमीडिएटली। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो रेस्ट पे था ना, तो रेस्ट पे होने की वजह से उसके अंदर डेवलप हो जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, इसलिए वो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट करता है, ग्रेजुअली स्लोली वो धीरे स्टार्ट करता है। सिमिलरली अगर सपोज कर लो फैन जो है 4 और 5 पे तुमने रेगुलेटर चला दिया, बहुत स्पीड में चल रहा है, और एकदम से आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फैन क्योंकि रोटेट कर रहा था प्रीवियसली, तो फैन के अंदर डेवलप हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, और स्विच ऑफ करने के बाद भी फैन देखो काफी देर तक अपने आप रोटेट करता रहता, विदाउट एनी करंट, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, वो रोटेट करता रहता। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो क्या करता है? रोटेशनल मोशन की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसीलिए आप देखिए ना, फैन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसको टाइम लगता है थोड़ा रुकने में, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको एक बात बताया था, जब मैं टॉर्क पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था फोर्स और टॉर्क ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। ये बात मैंने बताया था कि फोर्स और टॉर्क एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं, दे आर एनालॉगस, एनालॉगस होते हैं, जस्ट एनालॉगस, सिमिलर होते हैं, मतलब एनर्जी फोर्स। तो जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, सेम काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन। ठीक है? फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा या रुक जाएगा या पीछे जाएगा, वॉट एवर इट इज। टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो रोटेट करता है, या फिर रोटेट कर रहा होगा तो रुक जाएगा, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है? एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो आपने याद है, आपने
जब हमने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि वहां पे ए की जगह अल्फा आता है और एफ की जगह टॉर्क आता है और एम की जगह आई आता है। तो जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना बेसिकली वो मास के एनालॉगस है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली अल्फा को क्या बोलते थे याद है आपको? अल्फा को क्या बोलते थे? जैसे ये ठीक है मैं कंपेयर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन गुड। अल्फा को बोलते थे एंगुलर एक्सेलरेशन। लेट मी कंप्लीट इट। अल्फा को हम लोग बोलते थे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन और ये था लीनियर एक्सेलरेशन। ए कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। और अल्फा को बोलते थे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है दैट। अब यहां पे देखो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां पर भी क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो रोल मास का लीनियर मोशन में होता है, यहां पे लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन, लीनियर लीनियर मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन मोशन। और यहां पे बात कर रहे हैं हम रोटेशनल मोशन का, रोटेशनल मोशन। तो जो रोल मास का लीनियर मोशन में होता है सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है। जैसे वहां पे क्या होता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, वैसे यहां पे भी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास जो है डिसाइड करता है लीनियर इनर्शिया, आई डिसाइड करता है रोटेशनल इनर्शिया। तो बेसिकली जो मास है ना वो डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स लीनियर इनर्शिया। तो यू कैन से कि लीनियर इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, लीनियर इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। आपको मालूम है कि अगर मास ज्यादा होगा, इस मामले को ध्यान से देखो, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सेम थिंग हियर, इधर आई ज्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, आई कम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो रोल मास का होता है लीनियर मोशन में, क्योंकि मास के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन डिफाइन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सेम थिंग यहाँ पे भी होता है। आई एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब आई ज्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, आई एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब जो रोल मास का होता है लीनियर मोशन में वही रोल आई का होता है रोटेशनल मोशन में। तो मास डिसाइड करता है लीनियर इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है रोटेशनल इनर्शिया। तो इसका मतलब आई एंड जो मास है ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं, एनालॉगस है। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रोटेशनल इनर्शिया को डिफाइन करता है। जैसे सीलिंग फैन स्विच ऑन करते हैं तो बहुत स्लो रोटेट करता है, जब स्विच ऑफ करते हैं तो जल्दी बंद नहीं होता है, काफी देर तक घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अब देखो, तो जो अगर फोर्स की जगह टॉर्क आएगा तो मास की जगह हमेशा आई आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो और ए की जगह अल्फा आ जाता है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ एक बात और है, जो रोटेशनल इनर्शिया होता है बेसिकली, अब हम वापस आते हैं, वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे आते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है बेसिकली? ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि एक्सिस के अराउंड मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर यू गेटिंग? तो आई जो है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन mass, you can say mass distribution, basically mass distribution, कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बेसिकली, नॉट ओनली मास, इट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, यू कैन से, हाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वर्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
कि मास एक्सिस के बहुत पास में है कि वो दूर है कि काफी दूर है, वो उस पर डिपेंड करेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, वो मास पे भी डिपेंड करेगा और वो रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से पहले समझो उसके बाद कॉपी करना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सर, जस्ट हियर फॉर सिंगल पार्टिकल, सपोज कर लो कोई सिंगल पार्टिकल लेट्स से, और कोई बॉडी जो है वो लेट्स से दिस इज एक्सिस हियर, ठीक है, ये एक्सिस है, ओके, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए ओ आर, और कोई पार्टिकल उसका मास m है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस, और उसका रेडियस हम ले सकते हैं r, r इज द रेडियस। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है, कि वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि जो मास जो है वो एक्सेस के बहुत पास में है कि दूर है, मतलब पास या दूर मतलब वो रेडियस पे डिपेंड करेगा ना, फिर वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मास इंटू रेडियस स्क्वायर दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट वगैरह पे आएंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मास क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, सीजीएस क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा m, मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा L2, ठीक है, दिस वन। सो ये तो एक पार्टिकल हुआ, लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हुए तब क्या करेंगे, तो फिर चेंज हो जाएगा, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स जैसे लेट्स से आई एम टेकिंग दिस वन, बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेट्स से दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, there's so many particles, let's say m1, this is m2, this is mn, n particles are there and their radius are r1, r2, this is rn। तो ठीक है ना, जैसे हमें सिंगल पार्टिकल का फॉर्मूला था ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब ये सभी जो हैं अपना अपना सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है, दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस वे, सी हियर, जस्ट वेट, they will perform circular motion like just a minute, एक second, this one, so all are performing circular motion, so सभी circular motion करेंगे तो सबका अपना अपना सर्कल होगा, all are performing circular motion like this way, सभी अपना अपना सर्कल करेंगे ये, ठीक है, everybody is performing circular motion, okay, तो सभी अपना अपना सर्कल करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 लास्ट वाला फिर ऐड कर देंगे mn rn स्क्वायर, तो एक्चुअली इसका मतलब हुआ समेशन ऑफ mr स्क्वायर, समेशन ऑफ mr स्क्वायर, सब mr स्क्वायर का एडिशन करना है, ठीक है, समेशन ऑफ mr स्क्वायर। तो सो यू कैन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक पार्टिकल है तो ठीक है mr स्क्वायर हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है तो ठीक है, लेकिन सबका रेडियस निकालना पड़ेगा, एक बात ध्यान रखना, और रेडियस हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा एक्सिस से किस एंगल पे होना चाहिए, वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो ऑल द रेडियस शुड बी एट राइट एंगल, सब राइट एंगल पे होने चाहिए, और सभी सर्कुलर मोशन अपना अपना कर रहे हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐड ऑल द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर इस तरह से धीरे धीरे करते सबको ऐड कर देंगे, सबका रेडियस आपको अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज वन थिंग। अगर सपोज कर लो कि कुछ ऐसी बॉडी है कि उसके पार्टिकल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, देन फॉर रिजिड एक्सटेंडेड बॉडी, देन yeah you can say not rigid continuous body, then not able to separate the particles, for continuous body then what will happen, फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप,
अब आप इसके पार्टिकल्स को जो सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर, हाँ, ओके। सो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर आप, ये मेंस में आता है बेसिकली, हाँ, और नीट में भी आ सकता है। नीट में एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है, उसमें ही मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये टेक एलिमेंटल मास, एक छोटा सा एलिमेंटल मास लो, टेक अ स्मॉल मास हियर, इट्स एलिमेंटल मास एंड इट्स रेडियस इज लेट्स से r, ठीक है, और ये जैसे ये छोटा सा एलिमेंटल मास जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट्स लाइक दिस वे। तो छोटा सा फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मतलब छोटा सा एलिमेंट, so moment of inertia of elemental mass ये क्या हो जाएगा, that is di is equal to mr square होता है ना, तो dm into r square। अगर टोटल चाहिए then total inertia, total moment of inertia, तो you have to integrate it, mr square होता है तो mr square लिख दिया, total moment of inertia, तो you have to integrate it, आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dm into r square, ओके। सो जेई में थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और नीट में फर्स्ट टू यूज करेंगे, वैसे रेयर कंडीशन में थर्ड भी आता है नीट में, ठीक है। तो आर यू गेटिंग द फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आपको रेडियस निकालना पड़ता है, तो रेडियस, अच्छा मैं रेडियस अगर चेंज करूंगा तो आई चेंज हो जाएगा ना, तो इसीलिए बोलते हैं डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। प्रॉपर्टी इन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री फॉर्मुलेस बॉयज एंड गर्ल्स, Yes, समझा? sir. So can you give an example for the third one Okay, later? I will give you just wait, just comment on this first of all. Can I explain the second one? ओके, सेकंड वन में क्या है कि सुनना, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हैं तो तुम क्या करो, सारे पार्टिकल का अलग अलग सेपरेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, m1 r1 स्क्वायर, सबका रेडियस अलग अलग, सबका मास अलग, और उसके बाद सबको क्या करो, इंडिविजुअली ऐड कर दो, ठीक है। मैं इस पे भी प्रॉब्लम लेके बताता हूँ, वेट, तो आप कॉपी कर लीजिए, मैं सब पे एक एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट कॉपी। सर हाँ, यस, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में क्या डिफरेंस है सर? वो लीनियर मोशन का, ये रोटेशनल मोशन का, दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंड लीनियर इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, रोटेशनल मोशन डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस। मतलब देखो, जब आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और इनर्शिया के डेफिनेशन, तो आपको क्या पढ़ाया गया होगा, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यूज किया था ना उन्होंने वर्ड, तो वो स्ट्रेट लाइन का इनर्शिया था ना। अब ये रोटेशनल इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर स्ट्रेट मोशन की बात कर रहे हैं तो उसको लीनियर इनर्शिया बोलेंगे, अगर कुछ रोटेशन हो रहा है तो उसको मैं रोटेशनल इनर्शिया बोलूंगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूंगा, ओके। ओके सर। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइट रखता हूँ, मुझे मालूम नहीं चलता, ओके, यस, नाउ यस, कॉपी ऑन दिस वन,
So can you please scroll down? Wait. So आफ्टर 2 मिनट्स लिंक एंड होगा, मीटिंग एंड होगा, आप फिर से सेम लिंक ज्वाइन करके आ जाइएगा. ओके, लिसन प्रॉपर्ली, आई एम रिपीटिंग अगेन. लिंक एंड होगा आफ्टर 2 मिनट्स. यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन. सर एनालॉगस मतलब क्या? एनालॉजिक मतलब सिमिलर रोल, दोनों का रोल सेम है. बस डिफरेंस क्या है कि ये लीनियर मोशन का है और ये रोटेशनल मोशन. जो रोल लीनियर मोशन का मास में है, सेम रोल आई का रोटेशनल मोशन में होता है. तो दोनों का रोल सेम है, बट मोशन अलग अलग है. वहां लीनियर मोशन हो रहा है या रोटेशनल मोशन हो रहा है. सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना. ओके सर. सर सेकंड और थर्ड ही कहना.